ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UK ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 'ਚ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 72% ਦੇ ਨਾਲ, 75% ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 79 ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਇਲਸ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਜੀ, ਲਿਸਨਿੰਗ 6.5, ਰਾਈਟਿੰਗ 5.5, ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ 6, ਸਪੀਕਿੰਗ 6.5। ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਜਰਨਲ ਲਈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਲੈਗजेंडर कॉलेज ਜਿਹੜਾ वैंकूवर ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ जी। देखिए, अब डिपेंड करता है जी आपका ऑफर लेटर आया है नहीं आया है। आप एलिजिबल हैं, आप अलेक्जेंडर कॉलेज में जा सकते हैं, और आपकी जो फाइल लगेगी वो जनरल कैटेगरी में, क्योंकि आपके 6 ईच नहीं है। अब अगर जो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने ऑफर लेटर लिया है या नहीं लिया। आपका वीज़ा आ सकता है बशर्ते आपके पास रिलीवेंट कोर्स हो तो, और एक अच्छा कंसल्टेंट हो। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप किस किस कोर्स के लिए अलेक्जेंडर कॉलेज में एलिजिबल है। एक तो जी आपके पास यहाँ पे एसोसिएट्स ऑफ आर्ट है, उसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंटर आर्ट्स है, लाइक मैथ और इकोनॉमिक्स है। आपके पास अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे, लेकिन आपके पास अकाउंट्स और बिजनेस नहीं है, इकोनॉमिक्स है और मैथ है, बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। एसोसिएट ऑफ आर्ट्स में जा सकते हैं, एसोसिएट ऑफ आर्ट्स बिजनेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक्स है और मैथ है। और तीसरा एसोसिएट ऑफ आर्ट इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हैं। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स, मतलब 3 प्रोग्राम आपने लिए हैं, तो आपके चांसेस हाई रहेंगे। जनवरी का जो इनटेक है वो क्लोज हो चुका है, और मई अभी ओपन नहीं हुआ है इस कॉलेज का। तो आपने देखना है कि भाई अगर आपने जैन इनटेक ले रखा है, आपका ऑफर आ चुका है, LOA आ चुका है, तो फाइल जल्दी से लगा दो। $200 इसकी एप्लीकेशन फीस है, और इसको पूरी फीस ये $16,500 फॉर ऑफर लेटर। ये पूरी फीस मांगते हैं 16,500 ऑफर लेटर के, उसके लिए मतलब LOA के लिए। प्रदीप जी, एक क्वेश्चन तो आया, यू आर एलिजिबल। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5.5 ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ SDS 'ਚ ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਜੀ ਜੀ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। SDS 'ਚ ਫਾਈਲ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, SDS ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5.5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ मिलेगा ना? जी 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 जी। देखो यहाँ पे ये बात है, आपके पास मतलब कॉलेज की मैं बात करूं, जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसके पास DLI नंबर होना चाहिए। अगर DLI नंबर है तो आप कॉलेज के ऊपर है, आप एक कॉलेज हो, मैं एक कॉलेज हूं, आप बोलते हो कि मुझे 6 ईच वाले बच्चे लूंगा, हो सकता है आप 5.5 बैंड पे ना लो, लेकिन अगर आप 5.5 बैंड पे ले रहे हो, ठीक है, आप SDS में भी फॉल कर सकते हो, आप बच्चे को SDS वाली भी फाइल ले सकते हो, और आप जनरल कैटेगरी वाली भी ले सकते हो। इट डिपेंड अपॉन एजुकेशन टू एजुकेशन प्रोवाइडर। DLI नंबर जिसके पास है, कोई भी कॉलेज है, 6 ईच के साथ फाइल लगाओगे तो आपको SDS में फॉल हो जाओगे। 6 no less than 5, 6 no less than 5.5 या 5.5 के साथ अगर कॉलेज एक्सेप्ट कर रहा है तो आपकी जनरल कैटेगरी में आएगी। दूसरी बात, आपने कहा 5.5 बैंड पे अगर बच्चा कोई फाइल लगाता है तो एक तो वीजा सक्सेस रेट बहुत कम रहेगा। 6 बैंड नो लेस देन 5 है, 6 नो लेस देन 5.5 है, तो वीजा चांसेस जनरल कैटेगरी में हाई है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 5.5 बैंड पे फाइल लगाई तो वीजा ओवरऑल 5.5 नहीं चाहिए, 6 हों। हाँ, ओवरऑल 5.5 ना। और सुनो, बड़े स्टूडेंट्स कॉल करते हैं कि जी सर ने, प्रदीप सर ने बोला था टीवी पे कि 5.5 बैंड पे हम फाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम बहुत कम फाइल एक्सेप्ट करते हैं 5.5 बैंड पे। अगर बच्चे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो ये एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हाँ, सर का जो क्वेश्चन है कि भाई अगर आप 6 no less than 5.5 या 5.5 ओवरऑल, जो भी अगर आपकी कोई कॉलेज फाइल लेता है, आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद अगर PSW मिलता है तो मिलेगा। वो आप इमिग्रेशन की साइट पे जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से कॉलेज के कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें बच्चा अगर जाता है तो बच्चे को वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। CIC की वेबसाइट है, जब उस पर आप जाओगे तो इमिग्रेशन एक कॉलम है, मैं वेबसाइट बता देता हूँ, www.cic.gc.ca।
जब आप इमिग्रेशन की साइट खोलोगे तो जैसे मैंने पहले बताया था कि भी इमिग्रेशन की उसका क्या इमिग्रेशन का कॉलम है, उस पे आप स्टडी के कॉलम पे जाओगे तो उसमें पूरे का पूरा जो विंडो खुलता है तो राइट हैंड को डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट DLI कॉलेज की पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट को जब आप ओपन करोगे तो कॉलेज के नाम, प्रोविंस, सारी चीजें हैं। साथ साथ में राइट में एक कॉलम है कि PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस पर 3 चीजें लिखी होगी, यस तो यस, नो तो नो। एक लिखा हुआ डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब है जब आप उस डिटेल्ड पे अगर क्लिक करोगे तो उसमें लिखा आएगा कि इस कॉलेज में वो कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें PSW है या नहीं है। तो 3 तरीके हैं जी, यस और नो। यस का मतलब यस, नो का मतलब नो। और जहां डिटेल लिखा है तो डिटेल पे क्लिक करोगे तो उस कॉलेज के कौन कौन से प्रोग्राम में आप PSW ले सकते हैं वो डिटेल में लिखी हुई है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। जी अगला क्वेश्चन लवांगे जी, ईशान ने ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कैन आई टेक एडमिशंस इन यॉर्क विलेज यूनिवर्सिटी जी जी। व्हाट विल बी द सक्सेस रेट इन गेटिंग वीज़ा। मैं ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਕੀ ਨੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, 8 ਦਾ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ 5.5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। +2 ਨੇ ਜੀ 84%, 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9.2 CPG ਹੈਗਾ। ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.5 ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ। बढ़िया नंबर है 84% और 10th में 9.2 CGP, मतलब इट्स ए ग्रेट थिंग। और आपके 6.5 बैंड है, 2 मॉड्यूल में 5.5 है। यॉर्क विले यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और गुड न्यूज़ ये है कि जैन इनटेक अभी भी यॉर्क विले यूनिवर्सिटी दे रही है और आपकी जो फाइल है वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में लगेगी। यूनिवर्सिटी कैटेगरी एक तरह से SDS की तरह चलती है। जैसे SDS में वीज़ा सक्सेस रेट हाई है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी हाई वीज़ा सक्सेस रेट है। आंख मीच के फाइल लगाओ, बशर्ते कि आपके पास जो कोर्स है वो रिलेवेंट होना चाहिए, टाइम पे आपकी फाइल हो और कहीं ना कहीं कंसल्टेंट मैटर करता है। फाइल लगाइए, आपका वीज़ा आएगा। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਰੀਜਨ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਮ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ, ਰਿਊਮਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਨੀਆ ਦਾ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਹੈ ਜੀ, 52%। ਸਾਇੰਸ, ਹੁਣ ਸਾਇੰਸ ਲਿਖਿਆ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਇਲਸ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਰੀਡਿੰਗ 6.5, ਰਾਈਟਿੰਗ 6, ਲਿਸਨਿੰਗ 6, ਸਪੀਕਿੰਗ 6। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਈਚ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਜ਼ਾ फॉर कैनेडा बट वांट टू कॉलेज ओनली इन टोरंटो। देखिए सर, आपने लिखा कि आपके 52% मार्क्स हैं। मुझे ये देखना है कि पर सब्जेक्ट आपके मार्क्स कितने हैं। 52 तो मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है। अगर आप 2018 पास आउट हो तो अगर जेन्युइन गाइडेंस आते हो तो अगर आपके किसी भी कोर्स में 50 से नीचे हैं तो प्लीज़ आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर लो, क्योंकि आपने यहाँ पे ये नहीं लिखा आप किस ईयर में पास आउट हो। दूसरा, आप इंटेलिजेंट लगते हो क्योंकि आपके 6 ईच हैं। 6 ईच लेना मतलब ऐसा नहीं हर एक बच्चा नहीं ले पाता। तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो आप एलिजिबल हो, बट आप प्लीज़ थोड़ा डिटेल में बताइए कि आपकी साइंस स्ट्रीम है, मैं कौन सी स्ट्रीम है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में स्कोर कितना है। बट स्टिल यू आर एलिजिबल। इवन जैन इनटेक के लिए भी एलिजिबल है। हमारे पास कुछ कॉलेज अभी ऐसे हैं जिसमें आप जा सकते हो जैन इनटेक। इवन के नवंबर इनटेक भी एलिजिबल है। मैं प्रॉमिस करता हूँ 2-3 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर आएगा। हफ्ते के अंदर जैसे ही आपका GIC ओपन होगा आपकी फाइल एम्बेसी में आ जाएगी और जो महीने 1.5 महीने का जो प्रोसेस एम्बेसी का है वो एम्बेसी का प्रोसेस है। तो आप जैन इनटेक में अगर किसी बच्चे को सीट नहीं मिल रही तो आप यू कैन कम टू अस, जिसमें यॉर्क विले यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जिनके हम 2-3 दिन में ऑफर लेटर ले रहे हैं और बच्चों के सक्सेस रेट बड़े हाई है और वीज़ा भी आ रहा है। प्रदीप जी, एक मेरा क्वेश्चन है ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ जी जी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਚੜ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ को कितने चांस ने जनवरी इनटेक अवेल करने दे? देखिए डिपेंड करता है। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज की सीटें फिल हो चुकी हैं, जो पहले खासकर उन कॉलेज की बात करें जो पहले SPP में थे जी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे एक माउंट विंसेंट यूनिवर्सिटी है हैलिफैक्स में, उसमें सीटें हैं। यॉर्क विले यूनिवर्सिटी में है, फिर आपका यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में मास्टर्स प्रोग्राम है और रॉयल रोड यूनिवर्सिटी है। इस टाइप की यूनिवर्सिटीज में रिवन के लेक हेड यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जैन इनटेक अवेलेबल है। रॉयल रोड कितने जी है? ये अपना वैनकूवर में, इधर ब्रिटिश कोलंबिया में। तो इनमें जो मैंने लेक हेड बताया ये आपका क्या नाम है ओंटारियो प्रोविंस में है। इनमें सीटें अवेलेबल हैं, कुछ सेनेका में भी हैं। जॉर्जियन के अभी सीटें ओपन हो रखी हैं, जॉर्जियन में हम फाइल लगा रहे हैं। मतलब ऑफर अभी आए नहीं है, हमने मतलब ऑफर लेटर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो कुछ कॉलेज
कॉलेज है जिसमें अवेलेबल है, इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में भी अवेलेबल है, जिसमें हम आपको 2 या 3 दिन में ऑफर लेटर और तकरीबन हफ्ते के अंदर आपकी फाइल या 10 दिन के अंदर फाइल एम्बेसी में जा सकती है। अगर प्रोफाइल अच्छी है, चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे प्राइवेट कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, प्रोफाइल अच्छी है, कोर्स रिलेवेंट है, तो आपको वीज़ा आएगा। बात बच्चों की यहाँ थोड़े से क्वेश्चन होते हैं कि जी हम प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, इसमें PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चा यहाँ से स्मार्ट वर्क कर सकता है। अगर आपको इनटेक नहीं मिल रहा है और हम इनटेक आपको दे रहे हैं, आप जाइए 1 साल पढ़िए, 1 साल पढ़ने के बाद आप दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले लीजिए जिसमें PSW है। तो PSW वाले कॉलेज में जाओगे, 2 साल वहाँ पढ़ोगे, 3 ईयर का वर्क वीज़ा मिलेगा, बच्चा सेटल हो सकता है ਜੀ। ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈ ਅਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ CEO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਕੇਜ ਅਸੀਂ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ गाइड करना चाहोगे स्कॉलरशिप के मामले? देखिए 43-42 यूनिवर्सिटीज़ हैं और सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़, इवन के कॉलेजेस भी जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो बच्चों को आज की डेट में स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बशर्ते बच्चा चंगा हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, उसकी परसेंटेज अच्छी हो और उसकी क्या नाम है आइल स्कोर अच्छा हो। तो 20%, 15%, 10% और इवन के कुछ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी है आपकी फेडरेशन है, बैलट कैंपस है, 1 साल का अकोमोडेशन भी फ्री दे रही है, हमने कुछ बच्चों को दिलाया है। तो डिपेंड करता है बच्चे की प्रोफाइल टू प्रोफाइल है। यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो परसेंटेज क्राइटेरिया है कि जी आपके 65 to 70 है तो आपको 5% या 10% मिल रही है। सेकेंड ईयर भी है और थर्ड ईयर भी है। 70 to 80 है तो आपको 15% है, 80 प्लस है तो आपको 20% है। तो इस हिसाब से स्कॉलरशिप आज की डेट में फीस में मिल रही है। इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, प्रोफाइल अगर मैच करता तो 50% फर्स्ट ईयर की फीस का भी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी दे रही है। तो मई इनटेक अपना क्या नाम है फैब इनटेक दोस्तों 2019 मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास। दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेके प्लस में अपना क्या नाम है एकेडमिक और पासपोर्ट लेके टाइम पे पहुंचते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, बशर्ते कि क्योंकि सीटें भी लिमिटेड होती हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने इंडिया से ही बच्चे लेने हैं, उन्हें ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे लेने हैं। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द फैब इनटेक। आप अपने टाइम पे फाइल लगाइए, आपका वीज़ा भी आएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी जी। न्यूजीलैंड ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਾ ਰਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਭਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਈਏ। सो जिस दिन दी अनाउंसमेंट्स हुई, एप्लीकेशंस लगी, सक्सेस रेट किमें जा रहा है? अभी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है जी, क्योंकि दे नीड द स्टूडेंट्स, दे नीड द स्किल्ड स्टूडेंट्स। बट हाँ कुछ चेंजिंग आए। पहले क्या होता था, पहले आपको पास समझना होगा। पहले क्या होता था कि आपने डिप्लोमा किया या बैचलर्स की या ग्रेजुएट डिप्लोमा या PG डिप्लोमा या मास्टर कुछ भी किया तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद पहले आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलता था, मतलब ओपन वर्क वीज़ा मिलता था। उसमें बच्चे को एम्प्लॉयर लभना पड़ता था रिलेवेंट फील्ड में जो पढ़ा उससे रिलेटेड, और तब उसको जाके 2 साल का एम्प्लॉयर असिस्ट वीज़ा मिलता था। अब वो चीज़ चेंज कर दी है उन्होंने, एम्प्लॉयर असिस्ट हटा दिया है। अब वो 3 ईयर का अप टू 3 ईयर का ओपन वर्क वीज़ा दे रहे हैं। बट कीप इन माइंड, आपको ये समझना होगा कि वो चाहते हैं कि ऑकलैंड से बाहर बच्चे ज़्यादा हैं। अगर आप बैचलर ऑनवर्ड्स प्रोग्राम में जाते हैं, बैचलर्स में गए ठीक है, या फिर आप PG में गए या मास्टर्स में गए, आप ऑकलैंड में गए या बाहर गए, आपको अप टू 3 ईयर का आपको ओपन वर्क वीज़ा है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया या ग्रेजुएट डिप्लोमा किया और अगर आप ऑकलैंड जाते हैं तो आपको 1 ईयर का है, आउटर ऑकलैंड जाते हैं तो आपको 2 ईयर का है। उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि दे नीड द स्किल्ड पर्सन, और वो जो रीजनल एरिया है उनको डेवलप करना चाहते हैं। एंड कीप इन माइंड, अगर आप PG प्रोग्राम में जा रहे हैं एज पर द हाई कमीशन वेबसाइट, अगर आप PG प्रोग्राम लेवल 8 में जा रहे हैं, पहले भी बोलते थे कि जी यहाँ पे डिपेंडेंट वीज़ा स्पाउस वीज़ा होते हैं। PG प्रोग्राम लेवल 8 1 ईयर का होता है, 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। जो बच्चा ग्रेजुएट है वही PG प्रोग्राम कर सकता है। अगर आपका प्रोग्राम लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में है तो आपके डिपेंडेंट को या आपके डिपेंडेंट को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा और आपके बच्चा फ्री पढ़ाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बट हाँ मास्टर्स में जा रहे हैं, PhD में जा रहे हैं, आपका कोर्स लॉन्ग टर्म में है या नहीं है,
आपको 3 ईयर का है, आपके डिपेंडेंट को भी 3 ईयर का है और आपका बच्चा फ्री पड़ेगा ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 2-3 ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲਊਂਗਾ। 2015 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਾ ਇਸੇ ਜਿੱਦ ਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ। 16 ਲੰਘ ਗਿਆ, 17 ਲੰਘ ਗਿਆ, 18 ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਦੇ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਐਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦ ਕਿਉਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, PR ਵੀ ਆ ਗਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, मूव हो जाना सी। जिद च बैठे हैं जी, उत्थे ही जाना। इसके पीछे रीज़न है सर कि हम पंजाबी और मतलब एक बार सोच लिया, वो ठान लिया, वो पूरा करना है। कुछ सोसाइटी को देखते हैं कि जिन्हें पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, रिश्तेदार ये बोल रहे हैं, मेरा तो एक कनाडा बैठा है वो बोल रहा है कि यहीं जाना है। रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। तो दोस्तों मैं पहले भी बोलता हूँ और बल्कि अपनी काउंसलिंग में हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है आप SHO DSP नहीं लग सकते, कम से कम यार ASI हवलदार कुछ तो लग जाओ। आपका कनाडा नहीं जा पा रहे तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, यूरोप चले जाओ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते और अपनी प्रोफाइल बहुत जैसे खराब करके बैठ जाते हैं। ना तो यहाँ पे वो पढ़ाई करते, 3-3, 4-4 साल का गैप हो जाता है, फिर वो 2 नंबर डोंकी इधर उधर के चक्कर में घुस के अपने करियर को भी स्पॉइल करते हैं और अपने फैमिली के पैसे को भी स्पॉइल करते हैं। इवन के ऐसा बच्चा सेट नहीं हो पाता, उसकी शादी भी नहीं हो पाती। ऐसे ऐसे बच्चे 2 नंबर में बैठे हैं, 40-40 साल की उम्र में, बाल उनके उड़ चुके हैं और उनकी शादी हो नहीं पा रही। और पेरेंट्स को क्या चाहिए? पोते पोती। वो कब होंगे? जब एक बच्चा सेटल होगा। सेटल कैसे होगा? वहाँ तो 2 नंबर में रह रहा है, या फिर यहाँ बैठा है तो जिद में बैठा था कनाडा की, मैं कनाडा गया नहीं, यहाँ कौन पूछेगा। हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की बात करें, चाहे आपके पास अच्छी ज़मीन हो, सरकारी नौकरी हो, या आपका बेटा या बेटी विदेश में सेटल हो, या बहुत बड़ा कारोबार हो, तो ही लगेगा। अगर जिसके पास 2-3-5 एकड़ ज़मीन है और कोई छोटी मोटी प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसकी मेरे ख्याल से आज की डेट में सेटलमेंट नहीं है और उसको उसका रिश्ते होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल तुसीं सही फरमाया। प्रैक्टिकल है, एक ਸਟਾਇਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਪੈਕੇਜ 5 ਲੱਖ ਦੋ, 3 ਲੱਖ ਦੋ, 5.5 ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ UK ਦੀ। UK ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ UK ਗਏ, ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ UK। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਰ UK ਨੇ PSW ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ UK ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਤਰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ PSW ले पढ़ने ਦਾ ਇੱਛੁਕ है क्योंकि ਉਹਦੀ एजुकेशन लेवल ਜਿਹੜਾ बहुत ऊंचा है। रियली और हम तो स्टूडेंट्स को इन्वाइट भी कर रहे हैं जिन बच्चों के 65% अगर इंग्लिश में मार्क्स है तो दे कैन गो विदाउट IELTS, क्योंकि जितने हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, तो हायर एजुकेशन मतलब बैचलर और मास्टर्स वाले जो कॉलेज हैं जो बैचलर और मास्टर्स करा रहे हैं, उनको अपना एक असेस करने का तरीका है। उनको IELTS की जरूरत नहीं है कि वो IELTS देख के दें। अगर आपके पास IELTS नहीं है लेकिन आपकी प्रीवियस एजुकेशन बहुत अच्छी है तो दे कैन ऑफर कैश लेटर, मतलब जो जैसे यहाँ पे COE होती है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे यहाँ कैश लेटर होता है, वो आपको विदाउट IELTS भी मिल सकता है। बट कीप इन माइंड आप बैचलर और मास्टर्स में जाएंगे और बहुत अच्छी एजुकेशन है वहाँ। एजुकेशन कंप्लीट करके वहाँ भी चांसेस हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयर है तो डेफिनेटली आपका वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है, या फिर आप यू कैन मूव ऑल ओवर द वर्ल्ड। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSW ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एम्प्लॉयर है फिर कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेटली देन यू कैन, फिर कोई प्रॉब्लम जी। वो एक क्राइटेरिया है कि आपके पास 40,000 पाउंड का, 50,000 पाउंड का प्लस में ये जो एम्प्लॉयर है, इन एम्प्लॉयर में से आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए, देन स्टूडेंट कैन गेट द मतलब वर्क वीज़ा। मैं गल करांगा जी यूरोप दी, यूरोपियन कंट्रीज़ दी। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਡਫਲੀ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਟਵੀਆ, ਕੋਈ ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਕੋਈ ਇਟਲੀ, ਕੋਈ ਹਾਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਪੋਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਹੈਗਾ ਵਾਕਈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ US ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਰਮਨ ਗਿਆ, ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, पंजाब च सेल जोड़े है होर तरह किया जाता है, क्यों दुर्दशा की हुई है? प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा उतरता है तो वो सोचता है कि मैं तो अगले सेमेस्टर की फीस अभी से निकालूं। और यूरोप एक ऐसा कंट्री है जो मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात होती है कि जैसे बच्चा वहाँ सेटल होगा तो हो सकता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बच्चा कमा ले, लेकिन वो चाहता है कि मैं कल से ही
मतलब एक तरह से लाख रुपया कमाना शुरू कर दूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और वहाँ जाके बच्चा मिसगाइड हो जाता है। हम पोलैंड भी भेजते हैं, हम स्विट्जरलैंड भी भेजते हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, आपका हंगरी है, डेनमार्क है, स्वीडन है, दीज आर द कंट्री जो बहुत अच्छे कंट्रीज हैं। बच्चा वहाँ रुके तो या बस गाइड होके ही जाता, नहीं जी मैंने तो पुर्तगाल निकल जाना है, मैंने तो हंगरी से क्या नाम है पोलैंड आ जाना है, या फिर जर्मनी आ जाना है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप अगर पढ़ने जा रहे हैं प्लीज़ पढ़िए, पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप सेटल होंगे, और सेटल तभी हो पाओगे जब आपके पास में एक अच्छी एजुकेशन ਇੱਕ होगी। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਵੱਖ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, कंट्री है जिसमें यू कैन ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਪੇਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਏਮਪਲਾਇਰ ਕੋਲ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। पक्के कर देते हैं। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ। ਅਗਲਾ ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ सक्सेस रेट किस कंट्री ਦਾ? देखिए जी जैन इनटेक है। अगर आपने जर्मनी जाना है, जर्मनी में बहुत अच्छी एजुकेशन यहाँ फ्री भी है और पेड भी है, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद बैचलर और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको अप टू 18 मंथ का वर्क वीजा है। सबसे पहले मैं जर्मनी को वैल्यू देता हूँ। दूसरी बात आपका डेनमार्क है। डेनमार्क में फंड ही नहीं दिखाने, बट उनको 6.5 बैंड चाहिए ओवरऑल। अगर आपके 6.5 स्पाउस वीजा भी है यहाँ पे डेनमार्क और स्वीडन में, स्पाउस वीजा भी है। हाँ, आपको स्पाउस साथ जा रहा है तो उसके फंड दिखाने हैं, लेकिन आप अकेले जा रहे हैं तो आपको फंड नहीं दिखाने। और वहां पे भी सेटलमेंट है, बहुत अच्छे लेवल पे बच्चा सेट हो जाता है। पोलैंड है, पोलैंड में स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास एम्प्लॉयर है डेफिनेटली। फ्रांस है, फ्रांस में मास्टर्स करने के बाद आपको 2 ईयर का, अप टू 2 ईयर का वर्क वीजा है। इसी तरह हंगरी है, इसी तरह स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में हमने बच्चे काफी भेजे। स्विट्जरलैंड से बच्चा ऑल ओवर द वर्ल्ड मूव होता है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुद प्लेस कराते हैं। स्टडी 6 महीने की स्टडी है, 6 महीने की जॉब है। जब लास्ट सेमेस्टर होता है तो पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड से वो लोग एम्प्लॉयर को बुलाते हैं और बच्चों को रिक्रूट करते हैं। कोई इंडिया रिक्रूट हो गया, कोई साउथ कोरिया रिक्रूट हो गया, कोई कनाडा रिक्रूट हो गया, कोई यूएस, कोई दुबई, कोई सिंगापुर। तो इस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बच्चे के 2-2, 5-5, 7-7 लाख रुपए के पैकेज होते हैं। बच्चा पढ़ने वाला हो ना, बट वो चाहते क्या है कि जब जाऊं जाते ही मतलब अपने घर के सारे जो दुख है ना वो सारे आज ही हर दूं और आज ही पैसे कमा कर वापस घर भेज दूं। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ, पॉसिबल नहीं है। ਯੂਰਪ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟਸ, ਜਿੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰਿੰਗ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫੀਸ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, ਹਾਲੈਂਡ, ਪੋਲੈਂਡ, जर्मन, स्विट्जरलैंड, ये सारे कॉस्टली ने। सो सोच के जाना है। प्रदीप जी कुछ खास आज दे शो लिए? जी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज आपके साथ है जी। मेरे अमृतसर, जलंधर, अम्बाला, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत ऑफिस है। आई वुड कीप इन माइंड अगर आपको आइल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कम टू वेस्टर्न ओवरसीज। आइल्स आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की आपको गारंटी देता है। मीन बैंड की गारंटी नहीं देते हम 9 बैंड खुद प्रिपरेशन की तैयारी कराएंगे एंड यू विल गेट द स्कोर। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।